ठीक है, तो all cells in our body are diploid, and if the gamete were if the gametes were produced by mitosis, तो क्या होता है? If the gametes, हाँ हाँ हाँ, if the gametes were produced by, मामी को बचा रहे, were produced by mitosis, then okay, if the gametes were produced by mitosis, then after fertilization, the chromosome numbers would become क्या? Tetraploid, and क्या? The chromosome numbers would become tetraploid, and क्या? Chromosome numbers would become tetraploid, and there would be a change. There would be a change in the species. Okay, but ये जो है इसको हम लोग टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन बोलते हैं. Okay, what is teleological explanation? Far from reality, है ना? हाँ हाँ, इसको हम लोग फार फ्रॉम रियलिटी बोलते हैं. नाउ तो एक्चुअली क्या होता है, है ना? सो एक्चुअली है यह टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन. तो अब उसका एक्चुअल आंसर क्या है? दैट एक्चुअली these cells behave differently because because these cells behave differently because this is because they are because these cells originate from primordial germ cells that originated, okay, actually these cells have behave differently because these cells originate from primordial germ cells. इसको हम लोग क्या कहते हैं? PGCs, okay, that originated from extra embryonic cells. Okay, मतलब क्या? Cells that did not make the embryo. समझ रहे हो? That did not make the embryo. Fine. तो बोले जो लिखा है, मतलब so cells that did not make the embryo. Okay. So actually these cells behave differently because these cells originate from primordial germ cells that originate from extra embryonic cells. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. तो ये आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल से बनते हैं. ठीक है, नाउ तो कुछ सेल से बने हैं. सो दे originated from PGCs in the extra रहस्य ଆସିଲେ ପିଇବା ସେଟା ଖୋଜୁଛି ସମସ୍ତେ ତ from the extra embryonic mesoderm. So they originated from the PGCs from the extra embryonic mesoderm. Okay.
उसके बाद क्या है, ओके ऐसे कांदो जते कांदले तो भोक लगे। हाँ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। उसके बाद क्या होगा, एंटर इनटू yolk sac एंडोडर्म। ओके, ये yolk sac एंडोडर्म में घुसते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, then they enter into the urinogenital intraembryonic mesoderm। समझ रहे हो? तो अब ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में घुसते हैं। समझ में आया? So they originated from PGCs from the extra embryonic mesoderm। ठीक है? हाँ, go to हाँ, ओके, एंटर इनटू yolk sac endoderm। उसके बाद देन दे एंटर इनटू यूरिजेनिटल मेसोडर्म। समझ रहे हो? ओके, नाउ these cells are known as क्या, टाइप ए spermatogonia। ओके, these are called type A spermatogonia या totipotent sperm cell lines। Okay, now these cells are known as type A spermatogonia या totipotent sperm cell lines। ठीक है जी, तो ये है totipotent sperm cell lines। अंडरस्टूड? इसका मतलब समझ रहे हो, टोटिपोटेंट स्पर्म सेल्स? यस सर। बुझ रहे हो? तो मतलब ये सिर्फ स्पर्म सेल्स बनाएंगे, टोटिपोटेंट स्पर्म सेल्स लाइन, एंड will produce sperm mother cells forever। समझ रहे हो? तो ये स्पर्म मदर सेल्स बनाएगा forever। तब चिन्ह देता जगह को, है ना? तो टोटिपोटेंट स्पर्म सेल लाइंस and will produce sperm mother cells forever। ठीक है जी? Now these cells divide by mitosis। Oh boy, oh boy, these cells divide by mitosis and क्या होगा, these cells divide by mitosis and produce two daughter cells, है ना? and produce two daughter cells। ठीक है, ये दो डॉटर सेल्स बनाते हैं। ठीक है जी? नाउ आफ्टर प्यूबर्टी, ओके, one of these daughter cells, okay, one of these daughter cells, after puberty, one of these daughter cells will become type B spermatogonium। Okay, one of them will become type B spermatogonium। Okay, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रहरे सापापा आसीबो सेता सेता भोक लागियो जे से so one of these daughter cells will become type B spermatogonium। Okay, now ये क्या है, तो this is actual sperm mother cells। ये actual sperm mother cells हैं। Okay, actual sperm mother cells हैं, and the other will remain type A spermatogonium। समझ रहे हो? तो इसीलिए उन दोनों में से एक बन जाएगा sperm mother cell, okay, actual sperm mother cells, and the other will remain
टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम। हो गया ना। ये जो स्पर्म मदर सेल्स है will enter into meiosis interphase। समझ रहे हो? तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो उसको हम टाइप बी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मियोसिस इंटरफेज में घुसता है। ओके, सो ये आप मियोसिस इंटरफेज में घुसेगा। ओके, चलो, अंडरस्टूड। तो अब हम चले जाएंगे आगे। तो इस चीज को यहाँ देख सकते हैं आप। तो यहाँ आप देखिए, है। तो अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यू कैन सी दीज थिंग्स, देख रहे हो? ये टाइप ए है एंड ये टाइप बी है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ये सारा चीज आपको और किसी भी काजू किशमिश लिटरेचर में नहीं मिलेगा। ओके, यस सर नो? यस। हाँ, तो तुम लोग चुपचाप बैठ जाते हो क्यों? चलिए, तो ये देख रहे हो, ये सारे टाइप ए थे। अब ये घुसा टाइप बी। अंडरस्टूड? सो दिस विल एंटर। देख रहे हो? ये देखो, अब मैंने जो बोल दिया वो ईंट की लकीर। देखो क्या लिखा है, बोलो संकल्प टी पढ़ो। Enters meiosis 1 and moves to abdominal compartment. समझ रहे हो? मैं गलत बोल रहा था क्या? No sir. इधर क्या लिखा है, पढ़ो। Mitosis. देख रहे हो? बट ये और किसी भी किताब में तुम पढ़ोगे नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? चलिए, सो ये आपका कंसेप्ट है। ओके, चलिए, तो नाउ वी विल गो अहेड। चलिए, तो ना हम लोग एक पेज इंसर्ट करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियो तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। नहीं नहीं, हाँ, ओके। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो अब ताको दिन ये रुपया अला। तो अब हम लोग घुसेंगे क्या? सो नाउ टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम। ओके, या गोनिया लिख सकते हैं हम लोग। टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम या एक्चुअल स्पर्म मदर सेल्स। क्या? तो टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम या एक्चुअल स्पर्म मदर सेल्स क्या करेंगे? ओके, एंटर ओके एंटर meiosis interphase। okay, meiosis interphase, they increase their genetic and other, okay, they increase their genetic and other contents and become क्या? primary oocytes। okay, then become primary oocytes। okay, now this stage is referred to as, okay, इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज। ओके, सो दिस स्टेज, इसको हम लोग स्टेज 1 बोलते हैं।
Okay, this stage of spermatogenesis. Spermatogenesis is referred to as क्या? This is referred to as growth phase, and the type B oogonia क्या क्या कर रहे हो ये स्पर्मेटोसाइट कुछ बोल नहीं रहे ओके स्पर्मेटोसाइट्स ओके सो एंड बिकम उधर भी हमने oogo तो नहीं लिख दिया स्टार्ट कर so type this stage of spermatogenesis is referred to as growth phase and the type B and the type B spermatogonium become spermatocytes ठीक है तो वो एक्चुअली क्या ओके वो एक्चुअली क्या बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ओके सो दे इंक्रीज देयर जेनेटिक कंटेंट कितना बन जाता है ये बताइए 2n, 4c ओके ये 2n, 4c बन जाएंगे and other contents and become primary spermatocyte ओके तो इसलिए जो ये सब आपको याद रखना है कौन सा स्टेज को क्या कहते हैं ओके तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कौन होता है जो आपका G1S G2 के बाद बनेगा ओके फाइन so this stage of spermatogenesis is referred to as growth phase and the type B spermatogonium become primary spermatocyte तो spermatogonium का क्या कंसेप्ट था 2n 2c एंड इधर ये क्या बन गए 2n 4c इसमें क्रोमोसोम्स आर नाउ डायड्स डायड्स का मतलब क्या है 2 आर्म्स उसमें 2 आर्म्स आ जाएंगे या 2 क्रोमाटिड्स आप जिसको बोल सकते हैं अंडरस्टूड नाउ दे देन तो ये डिवाइड करेंगे दे देन डिवाइड बाय meiosis 1 okay so they then divide by meiosis 1 which is a क्या reductional division okay they then divide by meiosis 1 okay which is a reductional division okay and produce क्या 2 daughter cells okay they then produce 2 daughter cells known as क्या secondary spermatocytes क्योंकि इस पे गारंटेड क्वेश्चन नीट में आएगा समझ रहे हो मतलब कौन कौन किससे शुरू किए क्या बना गारंटेड क्वेश्चन विल कम इन नीट अंडरस्टूड Yes, sir. चलिए तो ये आपका बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तो अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का जेनेटिक कंपोजिशन क्या हो जाएगा अब ये आधा हो जाएगा N2C ठीक है जी तो इसलिए रिडक्शनल उसको हम लोग क्यों बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ एंड क्रोमोसोम माने
जो number becomes half and chromosome the amount also becomes half. ठीक है जी. तो इसका मतलब क्या है? तो इसमें याद रखेंगे सिस्टर. ओके, जो सिस्टर chromosomes of the bivalents. Bivalents मतलब pairs. Okay, separate and move to different cells. ये समझ में आया? Did you understand this term? Yes, sir. इसका मतलब क्या है बताओ? क्या समझ में आया? सब बताइए. सर सेकंड स्पर्मेटोसाइट के बाद वो फिर से माइटोटिक डिवीजन करके NC हो जाता है. नहीं नहीं And, नहीं नहीं. आपको अभी क्या समझ में आया बताओ? माने जो ब्रैकेट रे मु लिखली कौन बुझिलो एटा? ये क्या समझ में आया? Because you know these are topics where judges is king, my dear. And ये सब आप और कहीं भी नहीं पाएंगे. इसलिए ये सब समझना बहुत जरूरी है. कहीं भी नहीं पाएंगे बट एग्जाम में आएंगे. What do you understand by sister chromosomes of the bivalents? बोलो साम्या, इससे आप क्या समझे? वो जो मतलब क्या दो होते हैं कौन दो? होमोलोगस क्रोमोसोम्स. पानी हाँ, मतलब मम्मी का डैडी का. समझ रहे हो? यस सर. मम्मी का डैडी का जो क्रोमोसोम नंबर है, वो क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे. सेटा कौन धड़ा धड़ा ना दे देखो. बताओ. इसलिए क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया है आपका केवीपीआई में या कहीं से आया था इस बार ओलंपियाड में, कि जो गैमेट बनेगा, सपोज जो एक सर्कंटिस स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, उसमें सारे के सारे क्रोमोसोम्स मम्मी वाले होंगे. इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑल क्रोमोसोम्स बिलोंग टू मदर. What is the probability? 0. बताओ. 0. अरे 0. बकवास तो मत किया 0 करो. नहीं होगा. बकवास मत क्या करो यार. तुम लोग 0 नहीं. तुम लोग क्या मैथ्स पढ़ते हो, मुझे समझ में नहीं आता है. What is the probability